ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری نند کی شادی تھی اور اس کی شادی ایک بہت امیر گھر میں کی جا رہی تھی۔ لڑکے والے بارات لے کر آنے ہی والے تھے۔ ساس نے شادی کی تمام ذمہ داریاں میرے سپرد کر دی تھیں اور میری بس ادھر سے ادھر دوڑ لگی ہوئی تھی۔ آج اچھا دن تھا مگر پھر بھی میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ گئی تو ساس نے مجھے کہا کہ جاؤ پالر سے اپنی نند کو لے آؤ۔ پالر دوسری گلی میں تھا، اس لیے میں وہاں چلے گئی، مگر میرے قدموں تلے سے زمین تب نکلی جب پالر والی نے بتایا کہ میری نند تو آدھے گھنٹے پہلے ہی جا چکی ہے۔ اسے گھر سے کوئی لینے آیا تھا۔ بھلا گھر سے میرے سوا کون لینے آ سکتا تھا؟ اس کا تو نہ باپ زندہ تھا نہ بھائی یہاں تھا۔ پھر کون اسے لے گیا؟ میں سن رہ گئی۔ کہاں گئی میری نند؟ کہیں گھر سے تو نہیں بھاگ گئی؟ میرے جسم میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ ہماری عزت مٹی میں ملنے والی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی گھر واپس پہنچی اور چھا کر ساس کو کہا، روشنی بھاگ گئی، وہ پارلر میں نہیں ہے۔ میری ساس کے رنگ اڑ گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے ساتھ پارلر والی کے پاس گئی اور اس سے لڑنے لگی کہ تم نے میری بیٹی کو جہاں چھپایا ہے اسے وہاں سے نکالو۔ وہ بیچاری پارلر والی روحانسی ہو گئی کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر سے کوئی لینے آیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ہم نے اسے کہیں نہیں چھپایا۔ ایک دوسری لڑکی کہنے لگی، لگتا ہے آپ کی بیٹی بھاگ گئی، کیا زبردستی اس کی شادی کروا رہی تھی؟ اگر یہ بات محلے میں پھیل جاتی تو بڑی بدنامی ہوتی۔ میں نے اس لڑکی کو چپ کروایا اور ساس کو لے کے گھر آ گئی۔ لڑکے کی ماں مسلسل میری نند روشنی کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ ابھی تک پارلر سے نہیں آئی کیا؟ میری ساس نے جانے اسے کیا کہا کہ وہ مطمئن ہو کر مہمانوں میں چلے گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میری ساس کیا کرے گی۔ میں نند کے کمرے میں گئی تو دیکھا اس نے دراز میں ایک پرچی رکھی ہوئی تھی جس پہ لکھا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور یہ شادی نہیں کر سکتی، اس لیے گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ تو میرا شک ٹھیک نکلا، وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی۔ اب بارات واپس جانے اور ہماری بدنامی ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ شکر تھا کہ میرا شوہر یہاں نہیں تھا، ورنہ وہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی۔ وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ آپ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ روشنی کو یہ شادی نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ گھر سے چلی گئی۔ اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ساس کے چہرے پر کچھ تو ایسا تھا کہ میں چونک گئی۔ وہ کسی سے ڈرنے والی تو نہیں تھی، تو پھر آج کیا بات تھی؟ کہنے لگی، ان لوگوں نے اس شادی کے لیے مجھے بہت سارے پیسے دیے تھے اور وہ سب میں نے روشنی کو پکڑائے تھے اور اس نے اس سے زیور خرید لیا تھا، وہ آج اس نے پہننا تھا۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو وہ مجھ سے پیسے مانگیں گے جو میرے پاس نہیں ہے۔ میں چپ ہو گئی کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں بھلا؟ ساس جانے اور وہ لوگ، مجھے تو اس بات سے بھی کوئی خبر رکھا گیا تھا کہ ان لوگوں نے پیسے دیے تھے۔ میری ساس نے جلدی سے الماری سے میری شادی کا جوڑا نکالا اور مجھے کہا کہ اس کو پہن لو۔ میں حیران ہوئی کہ کیوں؟ تو کہنے لگی، بس تم پہن لو نا، میں سب بتاتی ہوں۔ میں نے اپنی شادی کا لہنگا پہن لیا تو ساس نے جلدی سے گھونگھٹ میرے چہرے پر ڈال دیا اور کہنے لگی، بہو اب تم ہی مجھے اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہو، دلہے کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا اور کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں روشنی کی جگہ جا کر کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ ابھی نکاح ہونا ہے، میں کیسے اس کی جگہ نکاح کر سکتی ہوں؟ ساس نے کہا، تم نے کون سا سچ میں نکاح کرنا ہے؟ بس قبول ہے کہہ دینا۔ کمرے میں جا کر اس لڑکے کو سب سچ بتا دینا، وہ اچھا لڑکا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ابھی بس ہماری عزت بچا لو۔ میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ساس نے زبردستی گھونگھٹ ڈال دیا اور مجھے زبردستی سٹیج پر بٹھا دیا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ اگر لڑکے والوں میں سے کسی نے دلہن کا چہرہ دیکھنا چاہا تو کیا ہوگا، مگر حیرت کی بات تھی کہ کسی نے بھی ایسی فرمائش نہیں کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری ساس نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہونے دے گی اور کچھ نہ کچھ ترکیب لے آئے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور لڑکے والے رخصتی کا کہنے لگے۔ ساس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کان میں کہا، وہاں جا کر کمرے میں جانے سے پہلے کسی کو اپنی شکل مت دکھانا ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں بہت ڈر رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لڑکے کی ماں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، دلہا بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی اس نے چلانی تھی۔ گاڑی میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھا تھا اور یہی بات میری تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ دلہن کو گھر لے جا کر جو رسمیں کی جاتی ہیں میں ان سے کیسے بچوں گی؟ پھر تو وہاں میرا گھونگھٹ ہٹے گا، تب میں کیا کروں گی؟ یا خدا، یہ میری ساس نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ لڑکے کا گھر کہاں ہے۔ کافی دیر بعد جب گاڑی کو شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھا تو چونک گئی۔ وہ کہنے لگا، ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں جہاں ہم اکثر جایا کرتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ صرف ہم دونوں ہوں، اس لیے سارے رشتہ داروں سے بچنے کا حل یہی تھا کہ ہم اپنی شادی کی پہلی رات فارم ہاؤس پر گزاریں۔ میں نے سوچا چلو اچھی بات ہے کہ اس کے رشتہ دار نہیں ہوں گے،
मगर आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं जानते थे। मैंने बस अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी फार्म हाउस जाकर रुकी। वो गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं गाड़ी में ही बैठी रही तो उसने आवाज़ दी, अब आओगी भी या इस गाड़ी में बैठे रहने का इरादा है? अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं आकर दरवाज़ा खोलूँगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाऊँगा तो तुम गलत सोच रही हो। मैं इसके इतने सख्त लहजे पर काम कर रह गई। दिल चाह रहा था कि मैं किसी भी तरह बस यहाँ से भाग जाऊँ। मैं गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे कमरे में चले गई और बेड पर बैठ गई और वो दरवाज़ा बंद करके कहीं चला गया। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, भाग जाती हूँ, मगर जब दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो बाहर से बंद था। मैंने खिड़की देखी तो वो जालीदार खिड़की थी, वहाँ से भागा नहीं जा सकता था। मैं मायूस होकर बैठ गई। 10-15 मिनट के बाद कोई कमरे में दाखिल हुआ। लगता था दूल्हा आ गया था। इससे पहले मैं उसे सच्चाई बताती वो पहले खुद ही बोल पड़ा, रोशनी तुमसे कोई और भी मिलना चाहता है, जानना चाहती हो? उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने महसूस किया 5 लड़के और कमरे में दाखिल हुए हैं। मेरा दिल किसी अनहोनी की गवाही देने लगा। मैं डर के मारे पीछे को सिरकने लगी तो वह सब हंसने लगे। एक कहने लगा, लगता है रोशनी ने हमें पहचान लिया है। वो लड़का जो दूल्हा बना खड़ा था कहने लगा, तुम क्या समझती हो कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ? ये कहकर वो हंसने लगा और कहने लगा, रोशनी मैडम, मैंने ये शादी तुमसे इसलिए की है कि तुमसे बदला ले सकूं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ फार्म हाउस में लाया हूँ। बदले का लफ्ज़ सुनकर मेरी रूह कांप गई कि ये क्या चक्कर है। इन सब ने रोशनी से किस बात का बदला लेना था? वो 5 लड़के मेरी तरफ बढ़ने लगे तो इसी वक्त मैंने चेहरे से घूंघट हटा दिया। वो सब जैसे करंट खाकर पीछे हटे। एक कहने लगा, ये तो रोशनी नहीं है। दिलशेर, तुमने किससे शादी कर ली? दुल्हा भी आंखें फाड़े मुझे देखे जा रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आखिर खुद पर काबू पाकर वो पूछने लगा, कौन हो तुम और रोशनी कहाँ है? मैंने रोते हुए कहा, रोशनी घर से भाग गई थी, मैं उसकी भाभी हूँ। सास ने ज़बरदस्ती रोशनी की जगह मुझे रुखसत कर दिया। इन सब के चेहरों पर मुझे गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जैसे उनका कोई प्लान फेल हो गया हो। इससे पहले हमारी मजीद कोई बात होती, कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगे। हम सब चौंक गए। दूल्हे ने जोर से पूछा, कौन है? तो एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, दिलशेर दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा लाला। इन सब लड़कों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। दिलशेर ने अपने दोस्तों को जल्दी से वॉशरूम में छुपने का कहा और मेरे चेहरे पर घूंघट डालकर मुझे खामोश रहने को कहा। इसने दरवाज़ा खोला तो शायद इसका भाई था जो अंदर आया और अपने भाई के कान में कुछ कहा। वो दोनों बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या बात हुई है। बात सुनकर वो भी काफ़ी परेशान हो गया और कहा, ठीक है लाला, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो कहने लगा, हाँ ठीक है, अपनी बीवी को भी लेकर आ जाओ। वो चला गया तो दिलशेर ने जल्दी से अपने दोस्तों को वॉशरूम से बाहर निकाला और कहा, तुम लोग जाकर रोशनी को तलाश करो, इसका पता करो। फिर मुझे कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने रोशनी से बदले के लिए शादी की थी। अगर वो इस वक्त यहाँ होती तो उससे मेरे बदले से कोई नहीं बचा सकता था। हम जा रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, तुम यहाँ से जब जाना चाहो चली जाना, और अगर रोशनी मिले तो उससे कहना कि वो दिलशेर से बच नहीं सकती। वो सब चले गए और मैं वहीं बैठी रह गई। आज सुबह से जो कुछ हो रहा था मैंने कभी ख्वाब में भी तस्वुर नहीं किया था। जाने इन लड़कों के साथ रोशनी ने ऐसा क्या कर दिया था कि वो सब बदले में पागल हो रहे थे। ये शादी भी अजीब थी और अजीब तरीके से हुई थी। इस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ से भाग सकती। मैंने बेड की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन ये लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। इस दिन सुबह से ही मेरी सास की फुर्तियाँ देखने लायक थीं। मुझे हैरत थी कि जाने आज ऐसे कौन से ख़ास मेहमान आ रहे थे जिनकी वजह से वो पिछले 1 हफ्ते से सफाइयाँ करवा रही थीं। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की थी मगर जवाबन वो एक घूरी सी नवाज देती और कहती, जो काम है वो करो बस, जब मेहमान आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। शाम के वक्त सारी तैयारियां हो चुकी थीं कि मेरी सास ने कहा, जाओ रोशनी को बोलो कि तैयार हो जाए। तब मेरी समझ में आया कि आने वाले मेहमान मेरी नंद रोशनी के रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं। मैं अपनी नंद के कमरे की तरफ बढ़ी तो चौंक गई, वो कमरे में नहीं थी। मैंने हैरान होकर पूरे कमरे में देख लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि मैंने वॉशरूम भी चेक कर लिया था मगर इसका कोई अता पता नहीं था। इसी असना में बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से खिड़की तक आई। एक शानदार सी गाड़ी से सूटेड बूटेड लोग निकले जो काफ़ी अमीर लग रहे थे। मुझे हैरत ने आन घेरा कि आखिर इतने ऊंचे लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के यहाँ कैसे आ गए। मेरी सास ने यकीनन बहुत ऊंची जगह हाथ मारा था। इन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद मेरी सास ने आकर मुझे रोशनी को बुलाने का कहा क्योंकि रिश्ते वाले तो उसे देखने आए थे। मगर जब उसे पता चला कि रोशनी कहीं नहीं है और फ़ोन भी नहीं उठा रही तो मेरी सास बहुत परेशान हो गई। कहने लगी, वो लोग पहली बार घर आए हैं, रोशनी का उनके सामने जाना बहुत ज़रूरी है वरना यह रिश्ता पलट भी सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
तुम उसे कॉल करती रहो। मैंने रोशनी को बहुत बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की मगर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। दूसरी तरफ रिश्ते वाले मुसलसल उसे देखने की फरमाइश कर रहे थे। मेरी सास इस मसले का कौन सा हल निकालेगी मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मेरी सास बहुत शातिर औरत थी, लेकिन इसका निकाला गया हल ऐसा होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे कहने लगी, तुम जल्दी से कोई अच्छे से कपड़े पहन लो और घूंघट निकाल कर आ जाओ, बाकी मैं देख लूँगी। मेरा तो होश ही उड़ गए कि अगर उन्हें पता चल गया तो, और वो तो इतने मॉडर्न और अमीर हैं, तो उनको घूंघट पर एतराज़ नहीं होगा क्या? मगर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। मैंने जल्दी से अच्छे कपड़े पहने और सास के कहने के मुताबिक चेहरे पर घूंघट ओढ़कर मेहमानों के सामने चली गई। मेरी सास मुस्कुरा कर कहने लगी, रोशनी को तो आप लोगों ने पहले ही देखा हुआ है, इसलिए उसने शादी तक आपके बेटे से पर्दा करने का फैसला किया है, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान की रवायत है। मैं दिल ही दिल में सास की हाजिर जवाबी पर हैरान रह गई, मगर उलझन भी पैदा हुई कि इन लोगों ने कब पहले रोशनी को देखा था। वो औरत बहुत ज़्यादा अमीर थी। अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ उतारकर मेरे हाथों में पहना दी और कहने लगी, मैं अगले महीने की 20 तारीख को अपनी बहू को ब्याहने आ जाऊंगी बारात लेकर। मैं दंग ही रह गई कि ये अजीब बात है कि रिश्ता देखने आई हैं और शादी की तारीख पक्की कर दी। मैंने घूंघट की ओर से लड़के को देखा। वो अच्छा खासा लड़का था और पढ़ा लिखा लग रहा था। ये लोग शरीफ थे और लोग जाने कैसे मेरे तेज तरार ससुराल वालों के हाथ लग गए। मैं थोड़ी देर बैठकर अंदर आ गई। मेरी शादी को 8 माह हुए थे और मेरा शोहर यहाँ नहीं होता था। शादी के 1 माह बाद ही उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई और वो वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया था और अभी तक उसका दूसरा चक्कर नहीं लगा था और मैं ससुराल के रहमो करम पर थी। मेरी सास और नंद बहुत शातिर औरतें थीं और हर वक्त अपने फ़ायदे के लिए सोचा करती थीं। मुझसे अपने बेटे की शादी जाने उन्होंने क्या सोच कर करती थी। मेहमानों के जाने के बाद भी मेरी नंद नहीं आई थी। जाने वो कहाँ थी जो अभी तक वापस नहीं आई थी। वैसे पिछले कुछ दिनों से मेरी नंद की हरकतें मुझे बहुत मशकूक सी लग रही थीं। हर वक्त उसका फ़ोन उसके हाथों में रहता था और वो मुसलसल फ़ोन के साथ लगी रहती थी। पूछने पर कहती कि मैं अपनी दोस्तों से बात करती हूँ, मगर मुझे शक था कि वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ चुकी है, क्योंकि जब भी वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती और मुझे आसपास देखती तो जल्दी से या तो फ़ोन बंद कर देती या इधर उधर हो जाती। 1-2 बार तो मैंने उसे रात के वक्त लॉन में भी चिकराते देखा था, तब भी फ़ोन उसके कानों से लगा हुआ था। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि वो किसी लड़के से ही बात कर रही थी और आज तो वो घर में थी ही नहीं, तो मुझे लग रहा था कि वो उसी लड़के से मिलने गई होगी। 2 घंटे बाद मेरी नंद झूमती हुई घर में दाखिल हुई। उसको देखते ही मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और कहने लगी, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है आज कौन आया था? मेरी नंद ने हैरत से कहा कि कौन आया था अम्मा? मैं भी पास ही खड़ी थी। मेरी सास उसे जोर से कुछ बताने ही लगी कि मुझे देखकर एकदम चुप कर गई और बेटी को बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। मैं हैरत से ये मंजर देखकर हैरान रह गई कि आने वाले मेहमानों में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। हैरत इस बात पर थी कि इन अमीर लोगों ने मेरी नंद को देखे बगैर ही शादी की बात कैसे तय कर दी थी। उलझती हुई वापस मैं अपने कमरे में जाने लगी जब सास की आवाज़ कानों से टकराई। वो अपनी बेटी को कह रही थी, आज तो किसी तरह से मैंने तुम्हारी भाभी को तुम्हारी जगह भेज दिया, मगर आज के बाद ऐसा ना हो, वो बहुत अमीर लोग हैं, ऐसा ना हो ये रिश्ता हाथ से निकल जाए। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी ज़िंदगी पिछले 7 माह से जमूत का शिकार थी और अब मैं सोच रही थी कि मुझे घर से निकलकर कोई नौकरी करनी चाहिए। मैंने ग्रेजुएशन किया था और शादी से पहले भी मैं एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। मुझे उम्मीद थी कि सास तनख्वाह की लालच में मुझे नौकरी करने देगी, क्योंकि मेरी सास एक लालची औरत थी। मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी और घर के पास स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल मुझसे चंद साल ही बड़ा था और एक अच्छा और नफीस इंसान था। मेरी बहुत परवाह करता और ख्याल रखता, मगर जब मैंने देखा कि वो मुझ में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। इस बेचारे का दिल टूट गया था, मगर मैं भी क्या करती, उससे उम्मीद तो नहीं दिला सकती थी ना। दूसरी तरफ मेरी सास की पूरी कोशिश थी कि इन अमीर लोगों के यहाँ उनकी बेटी की शादी हो जाए और उसने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि इतने पैसे उनके पास आए कहाँ से जो वो इतनी महंगी शॉपिंग कर रही हैं। मेरा शौहर तो इतने पैसे भेजता नहीं था, या शायद सास ने मुझे कभी इसकी असल तनख्वाह बताई नहीं थी। मैंने बहुत बार चाहा कि सास को बता दूं कि आपकी बेटी की शादी, इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, वो किसी और को पसंद करती है, मगर मेरे पास चूंकि कोई सबूत नहीं था इसलिए मैं चुप रही। मेरा ख्याल था कि रोशनी खुद ही मना कर देगी, मगर उसने अपनी माँ को इनकार नहीं किया, बल्कि जोशो खरोश से शादी की तैयारियों में लगी रही। शायद मुझे गलत फहमी हुई थी, मगर अब भी उसकी वही हरकतें थीं, चोरी छुपे फ़ोन पर बातें करना और घर से बहाना बनाकर गायब रहना। और मेरी सास ने उससे तो जैसे बेटी की तरफ से आंखें बंद की हुई थीं। मुझे तो उन्होंने एक दिन भी शॉपिंग पर साथ ले जाने को न कहा। शादी से 1 हफ्ता पहले दिलशेर यानी दुल्हा और उसकी माँ घर दाखिल हुए।
हैरत अंगेज तौर पर मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कह दिया, मगर मुझे तजस्सुस था कि आखिर ऐसी क्या बात करनी है इन लोगों ने जिसके लिए मेरी मौजूदगी उन्हें खुल रही थी। मैंने कमरे से बाहर आकर सुनने की कोशिश की और चोरी चोरी झांक कर देखा तो लड़के की माँ एक दुपट्टा मेरी सास को देखकर कह रही थी कि आपकी शर्त पूरी हुई। मुझे उलझन महसूस हुई कि ऐसी कौन सी शर्त थी और इस डब्बे में क्या था। अब मेरी समझ में आ रहा था कि इसमें पैसे थे जो इस वक्त मेरी सास ने मुझसे छुपा लिए थे। रोशनी और वो लड़का शायद पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। तभी जब मैं पहली बार रोशनी बनकर घूंघट में गई तो लड़के की माँ ने लड़की का चेहरा देखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। ये शादी किसी भी तरह से मुझे सही नहीं लग रही थी और मैंने कई बार सास को समझाया था कि लड़का और उसकी माँ इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। आप इनका घर तो जाकर देखें, इनके बारे में मालूमात तो करवाएं। मगर मेरी सास के चेहरे पर तो लालच की पट्टी बंधी थी और उसकी बेटी की आंखों पर किसी और की मोहब्बत की। खुद तो वो घर से भाग गई और मुझे अपनी जगह फंसा दिया। मैंने 1 घंटा आराम किया ताकि मेरे दिलो दिमाग को सुकून मिले और फिर इसी हुलिये में बाहर आ गई। ये फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर था और मैं थी भी दुल्हन के लिबास में। मगर मुझे अब जल्दी घर पहुंचकर सास से हिसाब लेना था। अगर वो लड़का रोशनी के बदले मुझसे लेता तो मेरे पास क्या बचता। मैं क्यों नंद का किया भुगतती। जाने उसने ऐसा क्या किया था। वो तो शुक्र था कि इन लम्हे पर उसका बड़ा भाई आ गया और उसे वहाँ से ले गया, वरना कुछ भी हो सकता था। यह भी एक राज ही था कि जाने इन लोगों की आपस में क्या बातचीत हुई। रात के 4 बज रहे थे। मुझे चलते हुए 2-3 घंटे हो गए। इतना चलने के बाद मेरी टांगें जवाब देने लगी और पाँव बुरी तरह शल हो गए। मैं थक कर सड़क के किनारे बैठ गई। सुनसान जगह का खौफ और थकन और जो कुछ मेरे साथ गुजरा था वो सब याद करके मैं रोने लगी। मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा था। मेरे तो माँ बाप भी सर पर नहीं थे कि मैं इनको फ़ोन मिलाती और वो मुझे आकर ले जाते। यतीम लड़की के लिए दुनिया बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे पास ना तो ज़ाती फ़ोन था, ना सास ने रखने की इजाज़त दी थी। मेरे पास इस वक्त कोई चारा नहीं था कि मैं अपनी सास के पास ही वापस जाऊं। मैं ये सब सोचते हुए रो रही थी जब एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने सर उठाकर देखा तो वो वही था, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल। शायद खुदा ने उसको मेरी ही मदद के लिए भेजा था। इस पर वो मुझे देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, तुम इस दुल्हन के लिबास में सड़क पर इस वक्त क्या कर रही हो। मैंने कहा, मुझे घर छोड़ दे, मुझे घर जाना है। सुबह की रोशनी फैलने वाली थी और लोग मुझे इस हाल में देखते तो 100 सवाल करते। मैं इसकी गाड़ी में बैठ गई। मैंने उससे कहा, मुझसे कुछ मत पूछिएगा, मैं फ़िलहाल जवाब नहीं दे सकती। फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था। 6 बजने वाले थे जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंची। मैंने उसे जाने को कहा और ख़ुद अपने घर आ गई। मगर एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं हकदक रह गई कि सुबह ही सुबह मेरी सास कहाँ गई। मुझे दरवाजे पर काफ़ी देर हो गई। मैंने काफ़ी बार दस्तक दी मगर घर पर वाकई कोई नहीं था। मेरी पड़ोसन घर से बाहर निकली और मुझे कहा, तुम्हारी सास तो बेटी की रुखसती के बाद सब मेहमानों को रुखसत करके खुद भी ताला लगाकर कहीं चली गई। कहाँ गई कुछ पता नहीं। नंद तो पहले ही गायब थी और अब सास भी गायब हो गई। ये क्या चक्कर था। दोनों माँ बेटियाँ मेरे साथ क्या गेम खेल रही थीं। मैं अपने शौहर को कैसे फ़ोन करती, इसका नंबर मेरे पास नहीं था। सास के पास था। वो सिर्फ अपनी माँ को फ़ोन करता था और कभी कभार ही सास मेरी उससे बात करवाती थी। पड़ोसन मुझे कहने लगी, मुझे याद आया तुम्हारी सास जाते हुए एक लफाफा देकर गई थी कि मेरी बहू आए तो उसको दे देना। उसने मुझे खाकी रंग का लफाफा ला कर दिया। मैंने हैरत से लेकर इस लफाफे को चाक किया तो मेरे हाथ से वो लफाफा छूट कर नीचे गिर गया। वो तलाकनामा था और मेरे शौहर ने 1 हफ्ता पहले ही मुझे ये कागजात भिजवा दिए थे। लेकिन मेरी सास ने मुझे ये क्यों छुपाया और अब देने का क्या मकसद था। वो खुद कहाँ गई थी। ये सारे सवाल मुझे बहुत तंग कर रहे थे। इस तलाक से मुझे दुख तो नहीं हुआ क्योंकि मेरे शौहर से मुझे लगाव ही नहीं था, मगर परेशानी ज़रूर हुई कि मैं अब कहाँ जाऊँगी। शादी से पहले मैं अपनी छोटी खाला के साथ रहती थी मगर उसके देवर की नीयत मुझ पे ख़राब थी, जिसकी वजह से खाला ने मेरी शादी में बहुत जल्दी की और अब मैं दोबारा भी वहाँ नहीं जा सकती थी। मेरे शौहर का मेरे साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था कि मैं इद्दत पूरी करती, इसलिए मैंने हिम्मत और हौसले से आगे का सोचा। पड़ोसन के घर गई और उससे कहा कि मुझे अपनी बैठक किराए पर दे दे। मैं स्कूल से जो तनख्वाह मिलेगी उससे किराया अदा कर दूँगी। उससे कपड़े लेकर मैं 8 बजे स्कूल चले गई। शहान मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, आपकी तो नंद की शादी थी और आपने छुट्टियां ली थी, फिर स्कूल कैसे आ गई। मैंने बस इतना कहा कि मुझे तलाक हो गई है और वहां से चली गई। एक ज़रूरी काम से मुझे उसके दफ्तर जाना पड़ा तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे लगा कि दूसरी तरफ शायद कोई लड़की है, मगर मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। मैं सोच रही थी कि अब मुझे भी खुदगर्ज होकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए सोचा कि अगर शहान ने मुझसे शादी के बारे में पूछा तो हाँ कर दूंगी। एक दिन स्कूल से वापसी पर मैं बाजार चली गई कि कुछ कपड़े खरीद लूँ। वहाँ मैंने शहान को एक लड़की के साथ देखा। लड़की की मेरी तरफ पुश थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मुझे धोखा दिया है
क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था और मैंने हाँ कर दी थी। फिर ये इस लड़की के साथ क्या कर रहा था? मैंने आगे बढ़कर इस लड़की का चेहरा देखना चाहा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो मेरी नंद थी, यानी वो जिस लड़की को पसंद करती थी और जिसके साथ घर से भागी थी वो शहान था। लेकिन फिर शहान ने मुझसे शादी का क्यों कहा? क्या वो हम दोनों को धोखा दे रहा था? मेरा दिमाग माऊफ होकर रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी नंद इतनी जल्दी मुझे नजर आ जाएगी। मैं इन दोनों को देखकर इतनी साकत रह गई थी कि मुझसे हिला भी नहीं गया और वो दोनों मेरे सामने गाड़ी में बैठकर चले गए और मैं देखती रह गई। मेरी नंद इधर थी तो यकीनन मेरी सास भी उसके पास चली गई होगी, वरना वो बाहर तो नहीं जा सकती थी ना। इतनी जल्दी वीज़ा लगता है क्या? शहान और रोशनी का कब से चक्कर चल रहा था, मुझे इस बात का पता लगाना था। अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो शहान कहने लगा, मेरी अम्मी आज तुमसे मिलने आएंगी और हमारी शादी की तारीख तय करेंगी। मैं चुप रही कि उसकी माँ के सामने ही इसका पोल खोलूंगी कि एक तरफ रोशनी को घर से भगाया है और दूसरी तरफ मुझे पागल बना रहा है। थोड़ी देर बाद वो मुझे बुलाने आया कि मेरी अम्मी और छोटा भाई तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही मैंने ऑफिस के अंदर कदम रखा मेरे सर पर आसमान फट पड़ा। सामने दिलशेर और उसकी माँ बैठे थे और वही लोग जो हमारे घर नंद का रिश्ता लाए थे वो भी मुझे देखकर चौंक गए। इसकी माँ मुझे बुरा भला कहने लगी, जिसकी नंद घर से भाग गई हो इसकी भाभी को कैसे मैं अपनी बहू बना लूँ। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मैंने दिलशेर की तरफ देखकर कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि रोशनी किसके साथ भागी थी और इस वक्त वो कहाँ है? मैंने उसके भाई शहान की तरफ इशारा करके कहा, रोशनी तुम्हारे भाई के साथ भागी थी और इसके साथ रह रही है, बल्कि मुझे तो लगता है मेरी सास भी इन्हीं लोगों के साथ रह रही है। रोशनी का नाम सुन के शहान के रंग उड़ गए। कहने लगा, रोशनी तुम्हारी नंद थी? मैं बिल्कुल नहीं जानता था। हाँ, मैंने उसे घर से भगाया ज़रूर था और ये भी सच है कि मैंने इन दोनों माँ बेटी को पनाह दी हुई है, मगर मैं उसको पसंद नहीं करता था, ना ही वो इस वजह से घर से भागी है कि वो मुझे पसंद करती है। दिलशेर ने अचानक ही शादी करने की ज़िद की तो मैं काफ़ी हैरान हुआ था, मगर अम्मी कहती थी कि इसकी पसंद की शादी है। मैं एक बार भी ससुराल में नहीं गया था, इसलिए मुझे कुछ इल्म नहीं था। शादी से 1 हफ्ते पहले की बात है जब मैंने दिलशेर को इसको दोस्तों के साथ बात करते सुना कि वो ये शादी बदले के लिए कर रहा है। मुझे अफसोस हुआ कि एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने उसके फ़ोन से रोशनी का नंबर हासिल किया और उसे सब बता दिया कि मेरा भाई उससे किसी बदले के लिए शादी कर रहा है। वो बहुत परेशान हो गई थी और कहा कि वो शादी नहीं तोड़ सकती। हाँ, शादी के दिन घर से भाग जाएगी। मैंने उसकी ये मदद की कि अपने अपार्टमेंट की चाबी उसे दे दी कि वो भागकर वहाँ चले जाए। फिर उसने कहा कि दिलशेर उसकी माँ को परेशान करेगा, तो मैंने कहा कि अपनी माँ को भी बुला लो, चंद दिन रह लो, पनाह ले लो। मैं इन दोनों माँ बेटी को उनके भाई के पास दुबई भेजना चाहता था, इसलिए कल उसका पासपोर्ट और कुछ कपड़े लेने उसके साथ बाजार किया। मैंने उसे बहन और वो मुझे भाई कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। दिलशेर गुस्से से कहने लगा, भाई तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने अगर बदले की बात की थी तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि रोशनी ने ऐसा क्या किया मेरे साथ जो मैं उसे बदले की बात कर रहा था। मैं भी तजस्सुस में थी और ये जानना चाहती थी, इसलिए हम चारों गाड़ी में बैठकर उस अपार्टमेंट में चले गए जहाँ रोशनी और मेरी सास थी। हम चारों को देखकर इन दोनों की रंगत फक हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की जो मैंने नाकाम बना दी। दिलशेर ने गुस्से से उसे कहा, तुम सारी सच्चाई मेरे भाई को खुद बताओगी या मैं पुलिस को फ़ोन करूं, क्योंकि निकाह नामे में तुम्हारा नाम है। मैं धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में तुम दोनों माँ बेटी को जेल करवा दूंगा। वो दोनों डर गईं। दिलशेर ने खुद ही बताना शुरू किया। कहने लगा, मैं कॉलेज के ज़माने से ही इसको पसंद करता था और ये भी कहती थी कि मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने इसकी चिकनी चिपड़ी बातों पर यकीन कर लिया, मगर फिर मुझे पता चला कि ये मुझे धोखा दे रही है। इसका कई और लड़कों के साथ भी अफेयर है। एक दिन हम सब लड़कों ने इसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया और हम पांचों एक साथ इसके सामने चले गए। और इसने जब देखा कि इसका पोल खुल गया है और इसका झूठ सामने आ चुका है तो इसने ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने कपड़े खुद ही फाड़कर हम सब पर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया कि हम पांचों इसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कॉलेज से निकाल दिया गया, हमें पुलिस पकड़ कर ले गई। इतने माह हम बेकसूर जेल में रहे सिर्फ इसकी वजह से। इसलिए सालों बाद मैंने उसे दोबारा देखा तो इसको दोबारा से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और शादी का वादा किया। मैं इसके साथ सिर्फ ये करना चाहता था कि इसके धोखेबाजी को सारी दुनिया पर अयां करके इसे तलाक दे देता ताकि उसे भी एहसास होता। मगर भाई, आपने सब खराब कर दिया। ये इंतहाई लालची है, ये किसी की सगी नहीं हो सकती। आपको भी अपने मतलब की खातिर इस्तेमाल किया। इस दिन मामा की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे जल्दी जाना पड़ा, वरना मैं इसकी भाभी को इसकी सारी हकीकत से आगाह कर देता। सारी कहानी सुन के मैं दंग रह गई थी। तो ये बात थी, इसका मतलब था वो सारी रात जिससे फ़ोन पर लगी रहती थी वो शेरदिल ही था। रोशनी मैडम ने तो कमाल की गेम खेली थी और अब वो दोनों माँ बेटी यहाँ से भागने के चक्कर में थी और इस सिलसिले में भोले भाले शहान को खूब लूट रही थी और मुझे भी साजिश करके
اپنی بیٹی کی جگہ بھیج دیا اور مجھے بتایا ہی نہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق بھیج دی ہے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور پلاننگ کی تھی۔ شیر دل سے اچھے خاصے پیسے اور زیور لوٹ کر اب فرار ہو رہے تھے، مگر سچ سامنے آ گیا اور ان کا دھوکہ سامنے آ گیا۔ میرے ساتھ بھی بہت برا کیا۔ ہم نے پولیس کو فون کیا اور ان پر دھوکے دہی کا پرچہ کٹوایا۔ وہ دونوں جیل چلے گئی اور میری شادی شاہان سے ہو گئی۔ میری ساری محرومیوں کا ازالہ ہو گیا اور آج میں بہت خوش ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔